Dear students, Assalamu alaikum. In today's lecture, I am going to discuss with you the question of writing an application. This is a compulsory question in your paper and it carries 10 marks. Here you are supposed to write an application to the principal on the given topic. In today's lecture, I am going to discuss in detail the format of writing the application. I'll also give you certain instructions about the body of the application, and later I also want to highlight some of the commonly made mistakes by the students so that you can pay attention towards those mistakes and you must avoid them. Here, like I told you, all the applications are addressed to the principal, and some of the commonly asked topics are grant of leave, grant of fee concession. You can also be asked to write an application for grant of scholarship. Then again we have this topic of apologizing for misconduct. The word apologizing means to say sorry, and misconduct is an improper behavior. यानी अगर किसी सिचुएशन में आपने मिसबिहेव किया है तो आपसे उस पर सॉरी करने के लिए कहा जाता है. Then we have this topic of apologizing for short attendance. So these are commonly asked topics in your paper. And now we move to the format of writing the application. Format in fact आपको एक set of rules देता है जिनको आपने strictly follow करना होता है application में. ये आपको बताता है where to start writing the application, how to put the punctuation marks, how to develop the body of the application, and how to end it eventually. Now the thing is, there are certain different patterns, formats that are in use. हम block pattern में applications लिखते हैं, semi block pattern में भी लिखते हैं. But what you have to follow is what has been prescribed by Punjab Board of Technical Education. Since you are the students of Punjab Board of Technical Education Lahore, so आपके लिए जो format prescribe कर दिया गया है आपने strictly उसको follow करना है. और previous classes में आप जो different formats के accordingly applications लिखते आए हैं, please put it aside simply, otherwise आप marks lose करेंगे इस question में. So मैं आपको in detail बताऊंगी जो आपके बोर्ड ने फॉर्मेट आपके लिए प्रेस्क्राइब किया है. ये फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन द टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर ऑफ द पेज आप एड्रेस करते हैं प्रिंसिपल को एंड यू राइट द वर्ड द प्रिंसिपल. Now like I told you, this is the top left hand corner of the page. You will not move towards the center and you simply cannot write it at the right hand corner. This is the top left hand corner of your page. मार्जिन लाइन के लिए थोड़ी सी स्पेस छोड़ के आप लिखेंगे द प्रिंसिपल, एंड हियर यू हैव टू बी केयरफुल. प्रिंसिपल का वर्ड कैपिटल पी के साथ लिखिए, एंड ऑल्सो स्पेल द वर्ड प्रिंसिपल वेरी केयरफुली. इट एंड्स विद PAL and it does not end with PLE. So write the spellings of the word principal carefully and correctly and put a comma at the end of this word. Then in your second line you are supposed to write the name of your institute, and when you write the name of the institute, this will be your second line. And in Kahoota, K capital, institute, I capital, of with small o, technology with a capital T, and you put a comma at the end of the second line. And then in the third line you have to mention the name of the city, that is Kahoota in our case. With a capital K you write the name of the city and you put a full stop. So यहाँ पे पहला कैरेक्टरिस्टिक एड्रेस का आपके एप्लीकेशन के पूरा हो जाता है. एंड अगेन आई मस्ट रिमाइंड यू, आप इस एप्लीकेशन के स्टार्ट में टू का वर्ड सिंपली नहीं लिखेंगे. यू हैव टू स्टार्ट राइटिंग इट. you simply address the principal, you address the authority directly, and you don't use the word to. So सबसे पहले आपने the principal लिखा, you put a comma in the second line, you write the name of the institute, and then in the third line you write the name of the city. अब जैसा कि हम ब्लॉक पैटर्न में हमारे पास लीविंग द लाइंस का कॉन्सेप्ट होता है और हर कैरेक्टर के बाद हम एक लाइन छोड़ देते हैं, लेकिन आपके इस पैटर्न में लीविंग द लाइन का सिंपली कोई कॉन्सेप्ट नहीं है. हर नेक्स्ट लाइन में आप लिखते जाएंगे. इसके बाद हमारे पास यहाँ सब्जेक्ट है. सब्जेक्ट में आपने एप्लीकेशन का इनफैक्ट उन्वान लिखना होता है, व्हाट इज़ इट अबाउट, और ये आपको पता चलता है आपके क्वेश्चन से. द स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन डिटरमिन्स कि आपको किस टॉपिक के ऊपर एप्लीकेशन लिखनी है. So you will pick up
की वर्ड्स फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ योर क्वेश्चन. जो मेन वर्ड्स हैं, की वर्ड्स हैं क्वेश्चन के, दे विल गिव यू एन आइडिया कि आपने किस टॉपिक के बारे में एप्लीकेशन लिखनी है. बट यू विल नॉट कॉपी द एंटायर स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन. उसमें से आप एक हेडिंग बनाएंगे. जैसे अगर आपका क्वेश्चन है राइट एन एप्लीकेशन फॉर द ग्रांट ऑफ फी कंसेशन, तो आप यहाँ पे सब्जेक्ट के लिए लिखेंगे ग्रांट ऑफ फी कंसेशन. जो ब्लैंक मैंने इसलिए छोड़ी है सो दैट यू कैन फिल इट इन आफ्टर टेकिंग ए फ्यू वर्ड्स फ्रॉम द क्वेश्चन. अगर आपको अपॉलॉजी वाली एप्लीकेशंस आती हैं तो फिर आप लिखेंगे अपॉलोजाइजिंग फॉर मिसकंडक्ट ईदर, या फिर अपॉलोजाइजिंग फॉर शॉर्ट अटेंडेंस. अब जब आपने सब्जेक्ट का वर्ड लिखना है स्टूडेंट्स, यू हैव टू लीव 2 fingers स्पेस. उसके बाद आप सब्जेक्ट का वर्ड लिखेंगे. यू विल पुट ए कोलन. ये जो ऊपर नीचे 2 डॉट्स हैं वी कॉल देम कोलन इन पंक्चुएशन मार्क्स. और उसके बाद आप अपने सब्जेक्ट का टॉपिक लिखेंगे. इन द नेक्स्ट लाइन हियर दिस इज द सैल्यूटेशन. यू हैव टू एड्रेस द प्रिंसिपल. सर का वर्ड यूज़ करके आप प्रिंसिपल साहब को एड्रेस करेंगे. एस कैपिटल है एंड इट फॉलोज ए कॉमा. अब आप अगेन देख रहे हैं, अगेन दिस वर्ड सर हैज़ बिन मूव टू दी क्लोज टू द मार्जिन लाइन, और यहाँ हम कोई स्पेस नहीं छोड़ेंगे. ऊपर के सीक्वेंस में क्लोज टू द मार्जिन लाइन आप लिखेंगे द वर्ड सर. नाउ स्टार्ट्स द बॉडी ऑफ द एप्लीकेशन. बॉडी ऑफ द एप्लीकेशन में जब आप पहला वर्ड लिखेंगे अपने फर्स्ट पैराग्राफ का, अगेन यू हैव टू लीव सम स्पेस, लीव 2 fingers स्पेस एंड देन स्टार्ट राइटिंग ये बॉडी ऑफ योर एप्लीकेशन. यहाँ पे आप अपने जो भी टॉपिक है एप्लीकेशन का उसके अकॉर्डिंगली बॉडी की लाइन सेट करेंगे. यू कैन पिक देम अप फ्रॉम द बुक एंड यू कैन राइट देम योरसेल्फ एज वेल. बॉडी ऑफ द एप्लीकेशन के बारे में कुछ फर्दर इंस्ट्रक्शंस मैं आपको इसके बाद दूंगी. अभी आप सिर्फ यहाँ पे ये याद रखिए कि वेन एवर यू स्टार्ट ए न्यू पैराग्राफ you leave 2 fingers space in the body of the application. फॉर्मेट के रेफरेंस से यही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है बॉडी ऑफ द एप्लीकेशन के बारे में, that you leave 2 fingers space in the beginning of every first line in your paragraph. इसके बाद हम इसको एंड करेंगे एप्लीकेशन को. एंड फॉर द एंडिंग अगेन वी हैव टू मूव टूवर्ड्स द राइट हैंड कॉर्नर ऑफ द पेज. यहाँ आप लिखेंगे योर्स ओबीडियंटली. योर्स पे आप अपॉस्ट्रोफी वाला कॉमा नहीं डालेंगे. प्लीज़ मेक इट ए पॉइंट. 90% से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हुए मुझे नज़र आते हैं कि वो योर्स के ऊपर अपॉस्ट्रोफी वाला कॉमा यूज़ करते हैं. दैट इज़ सिंपली नॉट रिक्वायर्ड. सिर्फ आप योर्स का वर्ड लिखें, इसके ऊपर कॉमा आप नहीं यूज़ करेंगे. ओबीडियंटली के वर्ड में ओ स्मॉल होगा. और स्पेल दिस वर्ड करेक्टली एंड पुट ए कॉमा एट द एंड. अब अगर आप रियल लाइफ सिचुएशन में एप्लीकेशन लिख रहे हैं तो यहाँ आप अपना नाम लिखते हैं. बट इन योर एग्जाम सिंस यू आर नॉट सपोज टू रिवील योर आइडेंटिटी, तो आप यहाँ पे XYZ लिख सकते हैं. देन यू राइट योर क्लास एंड इन द नेक्स्ट लाइन यू राइट योर रोल नंबर. इसके बाद हमें डेट लिखनी है एप्लीकेशन में. एंड वंस अगेन वी आर गोइंग टू मूव टूवर्ड्स द लेफ्ट हैंड कॉर्नर ऑफ द पेज. आप डेट का वर्ड लिखेंगे, यू विल पुट ए कॉलन. उसके बाद आप डे लिखेंगे, देन मंथ एंड देन द ईयर. लाइक इट्स 17th टुडे, तो आप यहाँ 17th लिखेंगे. और जो मंथ है, इफ़ इट्स जून और जुलाई और मई और वट एवर मंथ, आप उसको लिखेंगे. जुलाई के लिए आप 07 लिखेंगे, जून के लिए आप 06 लिखेंगे एंड लाइकवाइज. और उसके बाद आप ईयर लिख देंगे 2020. सो दैट्स व्हाट द फॉर्मेट ऑफ योर एप्लीकेशन इज़. अब इसके बाद मैं आपको बॉडी ऑफ द एप्लीकेशन के बारे में कुछ इंस्ट्रक्शंस देना चाहती हूँ. बॉडी ऑफ द एप्लीकेशन में सबसे पहला क्वेश्चन तो ये स्टूडेंट्स के माइंड में आता है कि हाउ लॉन्ग इट शुड बी. द आंसर इज़ यू हैव टू बी प्रिसाइज एंड टू द पॉइंट. प्रिसाइज होने का मतलब है शॉर्ट, टू द पॉइंट लिखिए. एप्लीकेशन एक फॉर्मल राइटिंग का क्वेश्चन है और इसको आप लेंथी नहीं बना सकते. आपने इसमें काम की बात लिखनी है, टू द पॉइंट, रेपिटिशन नहीं करनी और अपनी बात को शॉर्ट करना है. अगेन आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि एप्लीकेशन के इस फॉर्मल राइटिंग के क्वेश्चन में आपको अलाउड नहीं है कि आप शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ करें वर्ड्स को. जैसे कुछ स्टूडेंट्स बिकॉज के लिए बी लिख के एक स्लैश डाल के फिर सी लिख देते हैं, दैट इज़ रॉन्ग. उसके अलावा भी जो शॉर्ट फॉर्म्स हम स्टैंडर्ड शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ करते हैं वो भी आप यूज़ नहीं करेंगे. हर वर्ड आपको पूरा लिखना है.
देन यू हैव टू फॉलो द फॉर्मेट वेरी केयरफुली। जैसे मैंने आपको बताया कि आप इसके फॉर्मेट में एप्लीकेशन के शुरू में टू का वर्ड शामिल नहीं है, आपने उसको अवॉइड करना है। जहाँ पे आपको राइट हैंड कॉर्नर यूज़ करने को कहा गया, एंड वाइल राइटिंग द बॉडी ऑफ द एप्लीकेशन आपको इस बात का ख्याल रखना है कि जब आप एक पैराग्राफ शुरू करेंगे उसकी फर्स्ट लाइन में आप 2 फिंगर स्पेस देंगे और फिर उसके बाद रेस्ट ऑफ द लाइंस जो हैं पैरा की दे विल गेट बैक टू द सीक्वेंस। फिर जब आप नेक्स्ट पैरा शुरू करेंगे अगेन जो फर्स्ट लाइन है आपके पैराग्राफ की उसमें आप 2 फिंगर्स स्पेस देंगे। Here I want to highlight some of the commonly made mistakes. इनको आप ध्यान से देखिए so that you avoid them in your writing. एप्लीकेशन के क्वेश्चन में आपको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि ये फॉर्मल राइटिंग का एक क्वेश्चन है। अगर आप अपने पेपर में अपने आंसर स्क्रिप्ट के ऊपर अपनी आंसर शीट पे डिफरेंट क्वेश्चंस को जब आप सॉल्व कर रहे हैं तो अगर आप बॉटम लाइंस के ऊपर पहुंच गए हैं तो आपने एंडिंग की जो लास्ट की 2 या 3 लाइनें हैं उनके ऊपर से ये क्वेश्चन लिखना स्टार्ट नहीं करना। बेटर टर्न ओवर द पेज एंड देन राइट दिस क्वेश्चन सो दैट इट गिव्स ए कंप्लीट लुक ऑफ द फॉर्मेट। Now this is a very common mistake. Yours के वर्ड में स्टूडेंट्स अपॉस्ट्रोफी वाला कॉमा लगा देते हैं। दिस इज़ रॉन्ग, यू मस्ट नॉट पुट दिस कॉमा। योर्स के वर्ड में आपने अपॉस्ट्रोफी वाला कॉमा यूज़ नहीं करना। प्रिंसिपल का वर्ड लिखने में स्टूडेंट्स मिस्टेक कर देते हैं। ये पेयर ऑफ वर्ड्स में 2 डिफरेंट वर्ड्स हैं, वन एंड्स विद PAL एंड द अदर एंड्स विद PLE। यहाँ आपने PAL की एंडिंग वाला वर्ड लिखना है। देन मिस्टेक्स ऑफ पंक्चुएशन मार्क्स इन द फॉर्मेट मस्ट बी अवॉइडेड। केयरफुली देखिए आपको कौन से पंक्चुएशन मार्क्स बताए गए हैं और उनको फॉलो करें। Sometimes at the end of the applications the students use this word grateful in place of the word thankful. Grateful का ये word thankful का synonym है, but you must not misspell the word. GRATEFUL are the correct spellings. यहाँ आप ग्रेट में GREAT ग्रेट नहीं लिखते। देन अगेन ये बात स्टूडेंट्स को अच्छी तरह मालूम होनी चाहिए कि जब हम आप किसी भी जगह पे जब लेटर आए, जब आई एक प्रोनाउन के तौर पे यूज़ होता है तो आप इसको कैपिटलाइज करते हैं, चाहे ये आपके सेंटेंस के स्टार्ट में आए, मिडिल में आए या एंड में आए। प्रोनाउन आई को स्मॉल करने का कोई कॉन्सेप्ट इंग्लिश लैंग्वेज में एग्जिस्ट नहीं करता। यू हैव टू राइट इट इन कैपिटल। सो ये वो कॉमनली मेड मिस्टेक्स हैं जो कि मैंने ओवर द ईयर्स नोट की हैं स्टूडेंट्स के काम में, एंड आई होप आप इनको अवॉइड करेंगे। नाउ दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आई होप यू अंडरस्टैंड इट।